Hello everyone, welcome back. So in the last lecture we were discussing about the decimal expansion of rational and irrational numbers. Remember, we have seen that all the rational numbers can have two kinds of decimal. Either they have a terminating decimal or they will have a non-terminating but recurring decimal. Also in irrational numbers we have seen that decimal expansion of irrational numbers be non-terminating and non-repeating. So students, now we know about the rational numbers, about irrational numbers, and also we know about their decimal expansion. In today's class, what we will discuss about the inserting a rational or irrational number between given any two rational number or irrational number. Okay, as I told you in my first lecture that there can be infinite rational number or infinite irrational number can be put in between given two numbers. Okay, I gave you the idea of real number line. Okay, every point on real number line represents a unique real number. Okay, and hence there are infinite, and because there are infinite points on real number line, so we can say there are infinite rational numbers or the infinite irrational numbers. So the first topic is gonna be how to insert a rational और एन इर्रेशनल नंबर बिटवीन गिवन टू रैशनल नंबर्स. ओके, हम दो नंबर्स के बीच में अब नंबर्स इंसर्ट करेंगे. क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ आई हैव रिटन हियर, सी रीड इट वेरी केयरफुली. एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स कैन बी इंसर्टेड. इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स कैन बी इंसर्टेड बिटवीन गिवन टू, here I written rational numbers because I took the topic of rational numbers, how to insert numbers between rational numbers. Also it is true for irrational numbers, or I should say that between two given real numbers we can put infinite real numbers. Okay, now here it includes all rational and all irrational. Clear students? So let us start today's class. See students, I am giving you two important points. First, for any two given rational numbers, for any two given rational numbers a and b, small a and small b, what I did, I just represented two rational numbers with small a and small b. Okay, and let us assume here b is greater than a, और मैंने मान लिया इसमें जो b है वो a से बड़ा है. There are two concepts. First, a plus b by 2 is a rational number between a and b. A rational number between a and b. Students, a plus b by 2, it is nothing but their average. Remember average? हमने पढ़ा है ये पुरानी क्लासेस में. Also we say it arithmetic mean or average. This will always lie between small a and small b. Okay, and it is always a rational number for given rational numbers a and b. So I can write like this: the a plus b by 2 is gonna be greater than a but lesser than b. So a plus b by 2 will lie between a and b. Okay, and it is always a rational number. For example, if you are to insert a rational number between 2 and 3, so just write 2 plus 3 upon 2. So the 5 by 2 will be the number between 2 and 3. Okay students? Similarly, one more concept. Square root of AB is an irrational number between A and B. A and B. See students, if I have to put an irrational number between two given rational numbers, just take square root of their product. Okay, square root of their product. For example, if you want to put an irrational number between 2 and 3, so your answer is square root of 2 into 3 or square root of 6. Okay, see, it is also called geometric mean. In your higher classes you will know about that. Okay, but अभी के लिए आप केवल इतना याद रखें, root ab is always an irrational number where a and b are rational numbers, and this will always lie between a and b. So yes, I can write like this: root ab is an irrational number between a and b. So for inserting rational or irrational numbers we can take help of these concepts. Okay students? Now
let us take some examples to understand it in a better way. Example, suppose you have to insert one rational and one irrational. Suppose you have to insert one rational and one irrational number between say 5 and 6, between 5 and 6. So what are the answer? Rational number will be their average. Just take the average of this. So I will get 11 by 2. 5 plus 6, 11 by 2. Okay students. Similarly for irrational number, what is the answer? Answer is square root of 5 into 6 or square root of 30. So in this way we can insert one rational and one irrational number between any two given rational numbers. Clear students? Now this is not only the way, we have more ways. Okay, you remember in your 8th class you inserted any given number, any number of rational numbers between the two given numbers by making the denominator same and increasing the numerator by writing equivalent rational numbers. Okay, so we can take help of this that also for inserting your rational numbers. Okay, let us take one more example. Insert, suppose I am taking 3 rational, insert 3 rational numbers and say 3 irrational also and 3 irrational. Suppose we have to insert 3 rational and 3 irrational numbers between we can take any two rational numbers. Let us take 1 by 3 and say 3 by 2. Okay students, so I took the two rational numbers and what I am gonna do, I am gonna insert 3 rational and 3 irrational number between these two. How many I can insert? I can insert infinite many. Okay, because we have to insert 3, so I am inserting 3. Now students, there are number of ways of inserting. Either I can take help of this concept, or I can use the decimal expansion. Okay, or I can use the 8th class method by making the denominator same and increasing the numerator by writing equivalent fraction. So मैं ऐसा करता हूँ, आपको इससे समझा देता हूँ, ये आपके लिए इजी रहेगा और ये नया भी है अभी. ओके, इजी तो खैर सारे ही हैं बट ये नया भी है आपके लिए. Rational numbers. First of all, what I am putting rational numbers between 1 by 3 and 3 by 2. See, first rational number is their average. Take average of these two. 1 upon 3 plus 3 upon 2. I just added these two and divide this by 2. Now it's simple calculation. If I take LCM in the numerator, it will become 2 plus 3 or 5 by 6, and because in the it is 2 6 12. यहाँ क्या हुआ मैं समझा देता हूँ. देखो ये पूरा न्यूमरेटर था और ये डिनोमिनेटर था. डिनोमिनेटर में आप ऐसे एज्यूम करो कि यहाँ पर 1 था. हम किसी भी नंबर के नीचे 1 एज्यूम कर सकते हैं ना. तो ये 2/1 जब ऊपर जाके रिवर्स होगा तो ये 2 6 से मल्टीप्लाई होगा, तो मैंने इसको डायरेक्टली लिख दिया 5/12. तो ये एक रैशनल नंबर आ गया इन दोनों के बीच में. सो आई कैन राइट इन दिस वे 5/12 is lying between these two. Now students, I have to write 3, so I can take average of these two. Also I can take average of these two for inserting more rational numbers. Okay, so for second rational number I am taking their average, 1/3 plus 5/12 upon 2. Just add these two and divide by 2. If I take LCM in the numerator, it will become 4 and it will become 9. Clear? 4 plus 5 9, or it is gonna be 9/24 or 3 by 8. So I can write 1/3. See, I took average of these two now, so it will lie between in these two, in this way. Clear? Now I have to insert one more. I already inserted the 2, so I can take these two or these two, whatever you want. Okay, see, I am taking these two. Say 5/12 plus 3/2 and divided by
2. So I will get the numerator as LCM as 12. So it is 5 plus 18 upon 2, or it could be written as 23 by 24, right? So yes, we got one more rational number. So my answers are 1 by 3, 3 by 8, 5 by 12, and then here comes 23 by 24, and the last one is 3 by 2. So students, this is the way. Though it took time, आपने जो 8th क्लास में पढ़ा है वो आपको ज़्यादा इजी लगा होगा कि फटाफट से इनके एलसीएम लेके इनके डिनोमिनेटर 6 बना लो, फिर इनके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स लिख लो. दैट वाज आल्सो करेक्ट. ओके, यू कैन टेक यूज ऑफ दैट आल्सो. ओके, नाउ कम ऑन इर्रेशनल नंबर्स. ओके, हम कोई इर्रेशनल नंबर्स भी पुट करते थे ना. नाउ इर्रेशनल नंबर में थोड़ा सा ध्यान रखें स्टूडेंट्स. बेटर है कि हम लोग इस कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं, बट इस कॉन्सेप्ट से करने में अभी हमारे को स्क्वायर रूट्स के अंदर स्क्वायर रूट्स लेने पड़ेंगे, मतलब सर्ट्स इंक्लूड होंगे, और ये सर्ट्स जो है वो हमारे इसी चैप्टर का लास्ट टॉपिक होने वाला है. तो अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ एक मेथड बाय यूजिंग देयर डेसिमल एक्सपेंशन. ओके, नाउ यू रिमेंबर व्हाट वाज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इर्रेशनल नंबर्स. द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इर्रेशनल नंबर वाज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. सो आई कैन टेक their decimal form. I can write their decimal form. Remember, the decimal form of 1 by 3 is 0.3 bar. In my last lecture only I told you. Okay, it is non-terminating but repeating decimal. Similarly, the decimal form of 3 by 2 is gonna be 1.5. It is terminating 1. 3 by 2 is 1.5. So students, if you see carefully, it is 0.33333 and it is 1.5. So I can write any number which is greater than 0.3 but lesser than 1.5 and whose decimal expansion is gonna be non-terminating and non-repeating. Clear? Non-terminating and non-repeating decimal expansion should be, because I want irrational number. Okay, so you can write any number. I have see these two are rational, but I am writing what? Irrational numbers. So just take any number greater than 0.3 or 0.33. Okay, to be very exact, I have to write the number greater than 0.33. So it should be it can start with 0.34, 0.35 or 0.4 or 0.5 or 0.6, but it should be lesser than 1.5. Okay, see, अगर 1.5 के आगे कुछ भी नहीं है तो you assume कि 1.5000 है ये. Okay, तो स्टूडेंट्स क्या होगा यहाँ पर 0.3 से बड़ा लेना है अपने को, तो पहला कोई भी ले लिया, जैसे मैंने ले लिया 0.4 ले लिया. नाउ 0.4 से स्टार्ट होता हुआ आपको एक ऐसा नंबर लिखना है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो. फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे लिख लिया, इसमें कोई प्रॉब्लम? लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था आपको ये. सी, देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ पुटिंग बार ओवर, ओके, ओवर एनी डिजिट, बिकॉज not any pattern is formed. See here 4 5, then 4 5 5, then 4 5 5 5. Okay, so in this way I can say that the decimal expansion of this number is non-terminating and non-repeating. That means guaranteed this is an irrational number between this and this. Why? Because it is greater than 0.3 and lesser than 1.5. Also I can write infinite. Just we have to write 3 1. So 3 लिखने हैं हमको, तो 0.62 622 6222. ठीक है, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, नो मैटर, बस ध्यान ये रखना है कि 1.5 से छोटा और 0.3 से बड़ा होना चाहिए. फॉर एग्जांपल मैंने 0.8686668666. ओके, सो ओनली व्हाट इज नीडेड, ओनली नॉलेज इज नीडेड इन राइटिंग द रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर. ओनली नॉलेज इज नीडेड दैट how their decimal expansion are actually. Okay, non-terminating and non-repeating. So in this way we have inserted 3 rational and 3 irrational numbers between these two. Clear students? इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 3 नंबर में 4 नंबर में 3 नंबर में मैक्सिमम टाइम आते हैं स्कूल एग्ज़ाम्स में, तो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट. ओके स्टूडेंट्स, तो अब अपन आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, इंसर्शन ऑफ रैशनल और इरेशनल नंबर. आई गेस समझ में आ गया होगा सबको. नाउ the next topic is gonna be representation of these real numbers on real number line. Actually मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि हम
नंबर रियल नंबर्स को एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अब हम उसको एक्चुअली रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे। ओके, सो माय टॉपिक इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स ऑन नंबर लाइन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स लिख रहा हूँ मैं ना, क्योंकि हम रैशनल भी लिखेंगे करेंगे और इरेशनल भी करेंगे। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, ऑन नंबर लाइन। नाउ स्टूडेंट, रैशनल नंबर्स तो आपने रिप्रेजेंट 8th क्लास में भी करें, यहाँ पर भी आते हैं वो आपके। इनफैक्ट एनसीईआरटी में शायद फर्स्ट एक्सरसाइज में ही आपको क्वेश्चन दे रखा है इससे रिलेटेड, रैशनल नंबर, कि आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो रैशनल नंबर्स को, ठीक है। और नेक्स्ट नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको दे रखा है इरेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करो। तो हम दोनों को समझेंगे, पहले हम रैशनल नंबर्स का एक क्वेश्चन ले लेते हैं और फिर एक क्वेश्चन लेंगे इरेशनल नंबर का। ओके, तो रैशनल नंबर्स तो 8th वाले ही हैं, इनको फटाफट कंप्लीट करते हैं। एक क्वेश्चन की हेल्प लेते हैं अपन, ओके, समझने के लिए। लेट अस टेक अ क्वेश्चन। सपोज क्वेश्चन ऐसे आ गया, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन नंबर लाइन, ऑन रियल नंबर लाइन, ऑन नंबर लाइन, ऑन नंबर लाइन। इस तरीके से क्वेश्चन आता है। फर्स्ट say 3/4, second let us take minus 3/2, say it is 8/5, or you can take say 5/6. So I took 4. See, this is proper fraction. Proper means numerator is lesser than denominator na, the value will be lesser than 1. It is improper, okay, it is also improper, it is again proper. Numerator is denominator, numerator is lesser than denominator, the value is actually lying between 0 and 1. okay, so फटाफट समझते हैं इसको। इसके लिए बेटा आपको क्या चाहिए, इसके लिए चाहिए आपको पेंसिल और स्केल रिप्रेजेंट करने के लिए। नाउ अभी तो मैं पेन की हेल्प ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। पेंसिल से विजिबल हो सकता है ना हो, इसलिए मैं पेन से विजिबल आपको बना के दिखा रहा हूँ। देखिए सर, सी, ये हमारी हो गई रियल नंबर लाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल मेक अ नंबर लाइन। नाउ पुट एनी नंबर इन बिटवीन एंड मार्क इट विथ 0। सी दिस नंबर, दिस पॉइंट इज रिप्रेजेंटिंग 0। यहाँ मैं थोड़ा डार्क पॉइंट इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि विजिबल हो जाए, आप लोग लाइट पॉइंट लेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, actually what I have to do, I have to make the equal divisions, and I can take any length. So for your understanding, I am taking this time the length 0.5 centimeter. okay, it's up to you, you can take any length. So I am taking 0.5 centimeter length. okay, 0.5 centimeter तो आप ऐसे इस तरीके से ले सकते हैं, both sides of the 0 in this way. okay, so students, see carefully, these are the points which all are, I have taken 0.5 centimeter away. Now for example, I have to represent 3/4. so just see the denominator is 4 now. So I will say it like this. See, it is 1/4, it is 2/4, it is 3/4, and it is 4/4, and 4/4 is nothing but 1. okay, so what I did actually, I divide 0 to 1 between 4 equal parts, 1, 2, 3 and 4. clear? So this point will represent 1/4, this point will represent 2/4, and this point is gonna represent 3/4. Similarly, if I proceed further, see, it was 4/4 or 1, so it will be 5/4, then 6/4, 7/4 and 8/4, or I can write is 2, then 9/4, 10/4, 11/4, then 12/4 means 3. And in the negative side it will be like this, -1/4, -2/4, -3/4, -4/4, or -1. So in this way the number line is formed. clear? ये था आपका फर्स्ट का आंसर। नाउ
this concept will work in representing any of these all of the rational numbers. Okay, whether it is proper or improper, you just need to understand it once. Okay, see, now I am representing second one. Let us take this point as 0. Okay, now minus 3 by 2. So see, the denominator is 2 now. So in this way I will be taking the equal divisions. See, it is 1 upon 2, it is 2 upon 2 or 1, then 3 upon 2, 4 upon 2 or 2, then 5 upon 2, 6 upon 2 means 3. In the negative side it is minus 1 upon 2, then minus 2 upon 2, minus 1, then minus 3 upon 2 and minus 4 upon 2. Minus 4 upon 2 is nothing but minus 2. So I have to represent minus 3 by 2. So see, in the left side of 0 it was minus 1 upon 2, it was minus 2 upon 2 or minus 1. Then this point will represent minus 3 by 2. Clear, students? So it was your second question. Similarly, so what I did actually, I just divide the two integers between two equal parts now. So this is actually the concept behind this. Now let us represent 8 upon 5. See, this is 0. Now since denominator is 5, it will be like this: 1 upon 5, 2 upon 5, 3 upon 5, 4 upon 5 and 5 upon 5, that is 1. Then it will be 6 upon 5, 7 upon 5, 8 upon 5, 9 upon 5 and 10 upon 5, that is 2. So this point is B, is your required point, 8 by 5. Clear? In the negative side it will be minus 1 by 5, minus 2 by 5, minus 3 by 5, minus 4 by 5 or minus 5 by 5 or minus 1. Clear? Now taking the last one, 5 by 6. 5 by 6. वैसे स्टूडेंट्स ये काम तो आपने 8th क्लास में करा है, तो इसलिए ये लेस इम्पोर्टेंट है इस बार, बट इसके बाद जो इरेशनल नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन है वो इम्पोर्टेंट है इस बार. ठीक है, वो एग्ज़ाम में ज़रूर आता है. 5 by 6. See, it is 1 by 6, 2 by 6, 3 by 6, 4 by 6, 5 by 6 and 6 by 6 और 1. So ये point आ गया 5 by 6 का. If I proceed in the negative side, it is minus 1 by 6, minus 2 by 6, minus 3 by 6, minus 4 by 6, minus 5 by 6 or minus 6 by 6, that is minus 1. Clear, students? So in this way we can represent each and every rational number on real number line. आई होप ये तो समझ में आई गया होगा सबको बहुत अच्छे से. इसमें कुछ भी ऐसी रॉकेट साइंस है नहीं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये. चलो बात करते हैं हम नेक्स्ट की, जो कि है इर्रेशनल नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन. यहाँ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज वी विल टेक द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री दिस टाइम. रिप्रेजेंटेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर्स. इर्रेशनल नंबर्स, यहाँ से क्वेश्चन यूजुअली एग्जाम में आता है. स्कूल एग्जाम्स के अंदर तो बहुत फेमस क्वेश्चन है ये. रिप्रेजेंट रूट 2, रूट 3, रूट 5 ऑन रियल नंबर लाइन. आई हैव टू ऑलरेडी टोल्ड यू दे आर इर्रेशनल नंबर्स. ओके स्टूडेंट्स, सो to understand the concept of representing irrational numbers, first of all I am giving you the information related to this. What concept we are going to use actually in representing? Actually we are going to use Pythagoras theorem. You remember the Pythagoras theorem? See, let us revise that Pythagoras theorem, because we will take help of this Pythagoras theorem. See, we have seen in any right angular triangle, suppose this is an right angular triangle and suppose here angle B is 90 degree. The side opposite to right angle is always known as hypotenuse H. Okay, and the other two sides are known as, one is perpendicular or one is base. You can take any side as perpendicular. So see, this is perpendicular and this is base. Now the relation is the always square of H is that means square of hypotenuse is always equal to the sum of squares of other two sides. That means H square is always equal to P square plus B square. This is the concept of Pythagoras theorem. Now how this concept will use, we will take use for representing irrational numbers. See, for representing root 2, root 3, root 5, root 6, root 7, or I can
say you any number, any irrational number, okay, or you can say square root of any non-perfect square by this method, okay. रूट 2, रूट 3, रूट 5, बिकॉज रूट 4 तो रैशनल हो गया, रूट 4 की वैल्यू तो 2 होती है, वो तो रैशनल है, तो रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7 ये नंबर्स जो है वो इस मेथड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओके। सो स्टूडेंट्स केयरफुली देखना है इसको हम कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल हमको रूट 2 रिप्रेजेंट करना है, ओके, रूट 2। तो रूट 2 के लिए हम क्या करेंगे, हम एक राइट ट्रायंगुलर फॉर्म करेंगे। पहले मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि मतलब रिप्रेजेंट बाद में करके दिखाऊंगा, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ पहले इसके पीछे। हमने एक राइट ट्रायंगल बनाया और राइट ट्रायंगल में हमने क्या करा, परपेंडिकुलर को भी ले लिया 1 यूनिट और बेस को भी ले लिया 1 यूनिट। अब ये यूनिट कुछ भी ले सकते हो आप, 1 सेंटीमीटर, 1 इंच, ओके, एस यू वांट, ओके। नाउ टेक दिस, सपोज 1 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर, सो और एंड we have to find suppose this h. So by Pythagoras theorem the value of h square is gonna be 1 square plus 1 square, perpendicular square plus base square, so it can be written as 1 plus 1 or h square is equal to 2. Now see students, h square is equal to 2 means the square of this h is equal to 2. So when this square will go in the right hand side, it will become square root of 2. शायद आपने पढ़ भी रखा है 8th क्लास में कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एक दूसरे के अपोजिट ऑपरेशन होते हैं, ठीक है। कि जैसे 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 5 होगा। सिमिलरली अगर h का स्क्वायर 2 है तो h किसके इक्वल होगा, रूट 2 के। तो जब मैंने एक ऐसा राइट ट्रायंगल बनाया जिसका परपेंडिकुलर 1 है, बेस 1 है, तो अपने आप ही ये हाइपोटेनस की लेंथ पता है कितनी आ गई, ये हाइपोटेनस की लेंथ आ गई रूट 2। ये जो हाइपोटेनस की लेंथ हमने निकाली है, कितनी निकाली है, ये हमने निकाली है रूट 2। देखो आप 1 इससे आया रूट 2, ओके। इन द सिमिलर वे इफ आई मेक अ राइट ट्रायंगल एंड सपोज हुज बेस इज आई एम टेकिंग रूट 2 यूनिट, ये मैंने रूट 2 लेंथ ली क्योंकि जैसे मेरे को ये रूट 2 मिली थी उसी लेंथ को मैंने यहाँ ले लिया रूट 2, और यहाँ पर मैंने लिया 1। सो इफ आई ट्राई टू फाइंड हाइपोटेनस दिस टाइम, what I will get h square is equal to root 2 square plus 1 square, so it will be 2 plus 1 or 3. सो ओके, अभी यहाँ आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि रूट 2 का स्क्वायर 2 कैसे लिख दिया मैं। स्टूडेंट्स ये अभी हमारा नेक्स्ट पार्ट होने वाला है सिंप्लीफिकेशन में। बाकी अभी के लिए आप इतना याद रखें, किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर रूट है और हम उसका स्क्वायर करते हैं तो ये एक दूसरे के रिवर्स ऑपरेशन होते हैं, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट को हम कट कर देते हैं। अब इसके पीछे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट कैसे वर्क करते हैं ये अभी हम जानने वाले हैं आगे। अभी आप ये याद रखें, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट है, मान लो रूट एक्स है, और अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर केवल एक्स बचता है। इस चीज़ को अभी के लिए आप याद रखें, ओके। सो वैल्यू ऑफ एच स्क्वायर क्या आ गई, 3 आ गई। सो वैल्यू ऑफ एच कितनी बनेगी यहाँ से, रूट 3। तो फॉर रिप्रेजेंटिंग रूट 3 एज हाइपोटेनस, व्हाट आई डिड, आई टेक बेस एज रूट 2 एंड परपेंडिकुलर एज 1, ओके स्टूडेंट्स। रूट 4 तो रैशनल होता है, उसको छोड़ो, रूट 5 की बात कर लेते हैं। अगर रूट 5 है तो रूट 5 के लिए देखो आप इसकी हेल्प ले सकते हो। जस्ट टेक बेस एज 2 एंड परपेंडिकुलर एज 1 and try to find h. Here again h square is gonna be 2 square plus 1 square by Pythagoras theorem. So the value of h square is gonna be 4 plus 1, or h square is gonna be equal to 5, and the value of h is gonna be root 5. So this length, hypotenuse will be of length root 5 this time. Now this concept we will use in representing root 2, root 3, root 5. Okay, I am representing all these three, root 2, root 3, root 5 in a single example, okay. See very carefully, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, represent root 2, root 3 and root 5 on number line। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि ये आपके एक ही लाइन में सारे मतलब तीनों एक ही क्वेश्चन में आ जाए, ओके। हो सकता है इनमें से कोई एक ही आए कि केवल रूट 2 आए या रूट 3 आए या रूट 5 आए, जनरली इनमें से एक ही पूछा जाता है। बट अपन एक क्वेश्चन से अपन तीनों को ही रिप्रेजेंट करके देख लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे से देखना। एक तो है स्पायरल मेथड, जिसमें एक ही डायग्राम में रूट 2, रूट 3, रूट 5 तीनों आ जाएंगे, ओके। चलिए मैं आपको पहले स्पायरल मेथड ही बता देता हूँ, क्योंकि उसमें आपका रूट 2, रूट 3, रूट 5 तीनों आ जाएंगे। आपको क्या ज़रूरत होगी, इसके अंदर एक कंपास की ज़रूरत ज़रूर होगी। आपको कंपास लेना होगा, कंपास, पेंसिल एंड स्केल। सी फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है आपको एक बनानी है नंबर लाइन,
चलिए नंबर लाइन बना लेते हैं। हम स्पायरल मेथड से रिप्रेजेंट करेंगे। अब स्पायरल क्या है अभी समझ में आ जाएगा। देखिए दिस इज़ योर नंबर लाइन। नाउ पेन की हेल्प ले लेते हैं ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो जाए नंबर्स। सी पेन, सपोज this point is representing 0. Okay, now students, what we have to take for representing root 2, as I just saw here, I have to make a right triangle with base as 1 and perpendicular as 1. Now unit you can take any. Okay, so for your understanding I am taking 1 inch. 1 इंच के लिए मुझे ये स्केल, बड़ी स्केल की हेल्प लेनी पड़ेगी। सी ये लेंथ 1 इंच होती है, ठीक है। तो टेक 1 इंच। आप 1 सेंटीमीटर भी ले सकते हो, ओके, एस यू वांट। आप 2 सेंटीमीटर को भी 1 यूनिट से रिप्रेजेंट कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है। नाउ सी दिस पॉइंट इज रिप्रेजेंटिंग माई 1, so this is the total length of 1 inch. Okay, now you can take anything as I just told, 1 centimeter, 2 centimeter, to representing 1 unit on number line. Okay, for representing 1 unit on number line I took the help of 1 inch. Now see what we have, what I have to do, I have to make a right triangle with perpendicular and base 1 1 ना। So see I have taken 1 as base, मैंने 1 बेस ले लिया। अब मुझे परपेंडिकुलर 1 लेना है। तो परपेंडिकुलर 1 लेने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, आपको इस 0 पर, या बेटर है इस 1 पर आपको एक राइट एंगल बनाना है। इस 1 वाले पॉइंट पर एक राइट एंगल बनाना है, और उसमें से 1 यूनिट लेंथ कट करनी है। मतलब अगर अपन ने यहाँ 1 इंच लिया है तो वो लेंथ भी 1 यूनिट होनी चाहिए। नाउ आई होप आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना आता है कंपास से, और अगर चाहें आप तो उसकी भी हेल्प ले सकते हैं, प्रोटेक्टर की, डी की हेल्प ले सकते हैं आप। सी अभी तो मैं कंपास से प्रॉपर बना के दिखा रहा हूँ आपको। कोशिश ये करें प्रीफरेबली आप लोग भी कंपास का यूज़ करें कंस्ट्रक्शन के अंदर। नाउ इट इज़ 60 डिग्री एंगल, इट इज़ 120 डिग्री एंगल, एंड इफ़ आई बाइसेक्ट these two, I will be getting the angle of what, 90 degree. Yes. Now see this is my 90 degree angle. Now students क्या करना है, आप जितनी लेंथ ये ली है ना इतनी ही लेंथ इसमें से कट करनी है, क्योंकि हमने बेस तो 1 लेनी है, हमको परपेंडिकुलर भी बनी चाहिए फॉर रूट 2 लेंथ। तो ये तो हमारा था 1, इतनी ही लेंथ का हमने यहाँ पर कट कर दिया, ये भी 1 इंच ही है, ठीक है। नाउ जैसे ही मैं इस पॉइंट को इस 0 से ज्वाइन करूँगा तो देखिए राइट ट्रायंगल फॉर्म हो गया, और ये एक ऐसा राइट ट्रायंगल है जिसकी परपेंडिकुलर और बेस दोनों कितने हैं, 1 1। ये भी 1 है, ये भी 1 है। तो अभी हमने देखा जब ये दोनों 1 1 होते हैं तो हाइपोटेनस कितना हो जाता है, रूट 2 हो जाता है। मतलब ये जो लेंथ है ये रूट 2 आ गई, दिस लेंथ इज़ व्हाट, रूट 2। तो अब कुछ नहीं करना है बेटा, आपको यहाँ से लेके यहाँ तक इसको मेजर करना है, इस लेंथ को आपके कंपास में मेजर करना है। इस तरीके से ये मैंने कंपास में लेंथ मेजर कर दी, और इस सेम रेडियस का आर्क मुझे नंबर लाइन पे कट कर देना है, ये इस तरीके से। तो ये जो पॉइंट यहाँ कट होगा, क्योंकि जितनी ये लेंथ है उतनी ही रेडियस की ये लेंथ है, तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये गारंटीड रूट 2 वाला पॉइंट होगा। इस तरीके से दिस पॉइंट विल रिप्रेजेंट व्हाट, रूट 2। ये हो गया हमारा रूट 2 का रिप्रेजेंटेशन। हमने ज्योमेट्री की हेल्प ली है इसके लिए, समझ में आया स्टूडेंट्स? ओके। नाउ अब रूट 3 के लिए स्पायरल मेथड क्या कहता है, स्पायरल मेथड कहता है कि अब आप यहाँ पर वापस एक 90 डिग्री बना लो। तो क्योंकि ये लेंथ रूट 2 है ना, यहाँ पर 1 ले लेंगे तो उस टाइम हाइपोटेनस जो बनेगा वो रूट 3 आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको करके बताता हूँ आपको, रूट 3 भी इसी में ही, ठीक है। हालांकि ये इसको अपने क्वेश्चन को इंटरसेक्ट करेगा, कोई बात नहीं। चलिए, अच्छा ये ज़रूर ध्यान रखें, आप रूट 3 को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको रूट 2 को रिप्रेजेंट करना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि हमारे को रूट 2 का बेस चाहिए, तो उसके लिए आपको रूट 2 बनाना पड़ेगा पहले। नाउ आई एम मेकिंग राइट एंगल ऑन दिस। सी ये थोड़ा सा इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, कोई बात नहीं। आप लोग जब अपनी कॉपी में करें तो इसको थोड़ा सा नीचे ले लेना। सी
नाउ दिस इज अगेन अ राइट एंगल. इन दिस वे आई मेड अ राइट एंगल. सी, अगर आप ढंग से देखें तो ये लेंथ हमने अभी क्या बनाई थी, ये लेंथ √2 बनाई थी. अब मुझे ये लेंथ 1 चाहिए, तो लेंथ 1 तो यहाँ मेजर थी ऑलरेडी, तो यहीं से मेजर कर लें फटाफट. 0 से 1 की जो लेंथ थी वो हमने यहाँ ऑलरेडी मेजर कर रखी थी. ये हमारी 0 से 1 वाली लेंथ हो गई, 1 इंच जिसको हमने लिया था. ओके, आप भी इंच ही लें तो बेटर है. ओके, तो ये बन गया हमारा नेक्स्ट राइट ट्रायंगल. अगर मैं इस पॉइंट लेंथ को, इस लेंथ को यहाँ 0 से मिला देता हूँ, देखिए ढंग से, तो ये √2 यूनिट था, ये √2 इंच था, है ना. √2 यूनिट, √2 इंच, ये 1 था, तो ये लेंथ अपने आप ही कितनी आ गई, ये लेंथ आ गई √3. अब इस लेंथ को हमको तो नंबर लाइन पर लेना है, तो हम क्या करने वाले हैं, इस लेंथ को कंपास में मेजर करेंगे. ये मैंने कंपास में मेजर करा इस लेंथ को. ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से जो ये पॉइंट, सॉरी थोड़ा सा कंपास हिल गया, ये जो पॉइंट आने वाला है और ये लेंथ, ओके, दिस लेंथ इज गोना बी योर, दिस पॉइंट इज गोना बी योर √3. इन दिस वे आई हैव रिप्रेजेंटेड √3. ये पॉइंट जो है ये है √3 का रिप्रेजेंटेशन. क्लियर स्टूडेंट? अच्छा देखो, √2 √3 समझ में आ गया, मैंने एक ही डायग्राम में बना दिया इसको. नाउ इन दिस वे, अब अगर मैं वापस यहाँ पर 1 का लूँ तो √3 से और 1 से जो मुझे हाइपोटेनस मिलेगा वो मिलेगा 2 का. बट 2 तो ऑलरेडी मुझे पता है नंबर लाइन पे कहाँ आने वाला है, पता है ना 2 का आने वाला है. 0 से 1 के बीच में जितनी डिस्टेंस, क्योंकि 2 तो रैशनल नंबर है ना, यहाँ जितनी डिस्टेंस है उतनी डिस्टेंस पे 2 आएगा. फिर अगर मैं 2 का बेस और 1 का परपेंडिकुलर लूँगा तो उस केस में मुझे √5 मिल जाएगा. तो इन दिस वे वी कैन रिप्रेजेंट. नाउ इट्स अप टू यू, आइदर यू कैन टेक हेल्प ऑफ दिस स्पायरल. ये स्पायरल ही बनता जाएगा इस तरीके से. अगर अभी एक और मैं लूँगा फिर इसके अलावा लूँगा तो इसलिए इसको स्पायरल कहते हैं. ओके, बट फॉर रिप्रेजेंटिंग √5 आई वुड सजेस्ट वाई टू रिप्रेजेंट √2 एंड √3. वी कैन रिप्रेजेंट डायरेक्टली ना. इन सपोज आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि √5 को ही रिप्रेजेंट करना है डायरेक्टली, तो देखो √5 को रिप्रेजेंट करने के लिए बेटर होगा कि आप एक अलग नंबर लाइन बना लें, क्योंकि हमारे को क्या लेना है, हमारे को 2 का तो बेस लेना है और 1 का परपेंडिकुलर लेना है. देखिए ये हमारी एक और नंबर लाइन बन गई. इस नंबर लाइन पे मान लो ये वाला पॉइंट जो है वो 0 है और मुझे क्या चाहिए, अब मुझे 2 का बेस चाहिए. यूनिट कुछ भी ले सकते हैं, जैसे पहले मैंने 1 इंच लिया था, अभी मान लो मैं ले रहा हूँ 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट ले रहा हूँ मान लो. तो ये हो गया हमारा 2 सेंटीमीटर मतलब 1 यूनिट हो गया, और ये 4 सेंटीमीटर मतलब हमारा 2 यूनिट हो गया. मतलब ये वाला पॉइंट मेरा 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाला पॉइंट मेरा 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है. अब मुझे इस 2 को का बेस चाहिए और 1 का परपेंडिकुलर चाहिए, जैसा कि मैंने यहाँ बताया था 2 का बेस और 1 का परपेंडिकुलर. तो मैं अब कहाँ पे 90 डिग्री बनाऊँगा, मैं यहाँ 2 वाले पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाऊँगा. देखो 2 पर हम 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं. से दिस इज़ योर एंगल ऑफ 60 डिग्री. देन the next one is your angle of 120 degree, and bisecting them what I'll get the angle of 90 degree. Now कितनी लेंथ का कट करना है अपने को, आर्क 1 का, क्योंकि ये बेस 2 ले लिया, परपेंडिकुलर हमारे को 1 चाहिए. तो जस्ट कैलकुलेट 1 इन योर कंपास, जस्ट मेज़र. ओके, ये मेज़र किया मैंने 1 और इस 1 को मैंने यहाँ कट करा. पेन से बना लेते हैं ताकि प्रॉपरली विजिबल हो वीडियो में. नाउ दिस लेंथ इज गोना बी √2. ये जो लेंथ है √2 होने वाली है. तो हमको तो नंबर लाइन पे चाहिए इस लेंथ का, तो क्या करेंगे, कंपास उठाएंगे, कंपास में इस लेंथ को मेजर करेंगे. ये मैंने इस लेंथ को मेजर करा कंपास में √2 को, और सेम रेडियस का आर्क मैं कहाँ कट करूँगा, यहाँ पर. तो हमने देखा 2 से बड़ी वैल्यू होती है √5 की, 2 से ज़्यादा. तो ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा मेरे √5 को. क्लियर?
आपकी नॉलेज के लिए बता दूँ, √2 की वैल्यू जो होती है वो 1.414 एंड समथिंग होती है। ये होता है एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, हालांकि मैं बता चुका हूँ इसको अपने फर्स्ट लेक्चर में। √3 1.732 समथिंग होता है। √5 जो होता है ये भी 2.23 समथिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल होता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने √2 √3 और √5 को रिप्रेजेंट करा। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप इसको ज़रूर करें, ओके। और इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट हमने लिया वो कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ समझा दिया पाइथागोरस थ्योरम। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप ये सब समझ में आया होगा आपको। नाउ स्टूडेंट्स, आपने ऑब्जर्व किया होगा अभी तो हमने √2 √3 √5 को रिप्रेजेंट करा है। मान लो ऐसा आ गया √5.2 या √4.6, तो यहाँ पर तो कोई पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगेगी, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, √5 के आगे अगर मैं इसको ले, मतलब मान लो अगर मैं स्पायरल बनाऊँ √5, अगर यहाँ से 1 को वापस लूँ तो √5 का स्क्वायर 5 और 1 का परपेंडिकुलर, तो उस टाइम मुझे √6 मिल जाएगा। फिर √6 और 1 की हेल्प से मुझे √7 मिल जाएगा। तो बस 1 का अगर मैं परपेंडिकुलर लेते जाऊँ तो इरेशनल नंबर्स मिलते जाएंगे मुझे। √7 भी मिल जाएगा, √8 भी मिल जाएगा, √9 तो रैशनल हो गया, √10 भी मिल जाएगा। इस तरीके से मैं ये तो रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, जितने भी नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर रूट है वो तो आ गए। बट अगर कोई डेसिमल नंबर है तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम एक और मेथड पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिकल मेथड, बट वो बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में उसको करेंगे। यहाँ तक आप प्रैक्टिस करें। आई होप यू एन्जॉयड द लेक्चर, ओके। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एन्जॉय।